Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for our Thursday evening Zoom class. And today, just a new little bit add-on topic for the newcomers. Seniors को तो पता होगा, but the newcomers के लिए थोड़ा नया topic लेते हैं. I would like to ask some of my senior students, what is the actual difference between Bhagavad Gita and Bhagavatam? सर भागवतम है ना, वो महाभारत का एक खंड है। मतलब वो भगवत गीता का एक छोटा पार्ट है जो 45 या 47 मिनट्स में हुआ था। अच्छा, गीता जो बोलते गीता वचन। और कौन बोल रहे हैं? फुल फिलोसॉफिकल हिंदू फिलोसॉफिकल बुक है, हाउ टू लिव लाइफ। किशन गुप्ता जी बोल रहे हैं। किशन गुप्ता, मैं उनका चेहरा भी देखना चाहूंगा। मतलब पहली बार मेरे ख्याल से उनसे मेरी बातचीत हो रही है। मिस्टर किशन गुप्ता, कैन यू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो? आपका वीडियो ऑन कर सकेंगे आप? तो जी प्रभु जी। हाँ जी। तो मेरा एक प्रश्न था कि क्या है भागवतम, किसे कहते हैं? भागवतम किसे कहते हैं? जी प्रभु जी, भागवतम जो 47 मिनट्स में जो गीता वचन हुआ था उसे बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। एंड जो भगवत गीता है दैट इज अ हिंदू फिलोसॉफिकल बुक ऑफ हाउ टू लिव लाइफ। कहाँ से सीखा आपने ये? कहाँ से ज्ञान लिया आपने? कहाँ से ज्ञान लिया आपने? ये रोज मैं भागवत कथा सुनता हूँ जो अनिरुद्धाचार्य जी का। अच्छा, तो या तो उनका कुछ गलत तो होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से आपके समझ में गलती है प्रभु। ये आपने ठीक से ज्ञान पूरा ठीक से लिया नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोई वक्ता का गलती हो सकता है, इतना बड़ा गलती तो होगा नहीं। तो जनरली आदमी के समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हु इज दिस? आशा जी, आशना चांगोथिया। न्यू है कोई। बोलिए माता जी, आप बात कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, from where did you get connected with this? Through Tanvita Chachi ji. Okay, fine. Yeah, you're related to her, friend or relative? Okay, fine, great, that's great. Yeah, please speak. So Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, where Lord Krishna instructs Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Perfect. And Srimad Bhagavatam is like full philosophy, which includes all the Vishnu avatar and everything which is related to Hinduism. I'm not really sure about Bhagavatam, like in depth, how to explain it. So that little knowledge I had. Okay, fine, that's great. और कोई है जो कुछ शेयर करना चाहेगा? यस, आशु माता जी, आप तो रेगुलर क्लास आते हैं तो आप बता सकेंगे दोस्तों। प्रभु जी, जो भगवत गीता है वो जो हम लोगों के जीवन के ऊपर जो आधारित है, मतलब जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। और भागवतम जो दूसरे के जीवन पे आधारित है, दूसरे के जीवन पे घटती है। No माता जी, not at all. Yes, निखर, have you heard about भागवतम? Have you heard about भगवत गीता? आपके नॉर्थ में तो काफी भागवत कथा होती रहती है। भागवतम के बारे में मैंने ज्यादा मतलब सुना तो बहुत है, पर I haven't read it. भगवत गीता तो we all know it's the song of God, जो उन्होंने अर्जुन जी को बताया था ड्यूरिंग महाभारत। पर भागवतम के बारे में I don't have any idea. ठीक है, वेरी गुड। और कोई है जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा? Is there anyone else would like to participate and speak? तो बात करना चाहे तो कर सकता है। मुझे भागवतम is a commentary on the Vedanta Sutra written by Vyasadeva, and it is more about the Krishna Leela. Commentary on one minute. Commentary on. It's Vedanta Sutra, nahi Prabhuji? That is only for the first verse. People say, some speakers say that okay, it is a commentary on that. It's not at all a commentary by Vyasadeva. It's a total samvad. It's a samvad. But it is all about Krishna and Krishna's devotees. Yeah, but it is a samvad. Again, it is a samvad, right? It's spoken between Shukdev Goswami and Parikshit. So it is not at all a commentary. Okay. How can it be commentary when
let's say you and I are speaking, then how can it become a commentary? It has to be a direct, I speak, you speak, I speak, you hear, and you speak, I hear. It's like that. It's a conversation between both of us. So it's a conversation, like even Bhagavad Gita is a conversation between Arjuna and Krishna. Yes, Mataji ne jo Ashna Mataji ne jo bola tha, it was very much true, very much correct, that yes, भगवद गीता एक भाग है, भगवद गीता सॉरी महाभारत का एक भाग है भगवद गीता। और महाभारत में कितने श्लोक हैं, कोई आइडिया? 18,000 महाभारत में। Anyone else can try? I repeat, महाभारत में। This is our condition. We are all Hindus. This is our condition. We don't know how many shlokas are there in our own Shastra. कितने श्लोक हैं हमको पता नहीं है। Please mute. First and foremost, let's understand. महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और भागवतम में 18,000 है। Shraddha Mataji, did you get it now? Yes, Prabhuji, sorry. And that's why I repeated the question also. Mahabharata में Mahabharata has got 1,00,000 shlokas, Bhagavad Gita has got 700 shlokas, and Bhagavatam has got 18,000 shlokas. तो दोनों का अंतर बहुत ज्यादा है। It's not the same, no doubt. भगवद गीता में संवाद हुआ था भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, बट किस परिस्थिति में वो प्रश्न हुआ था और किस परिस्थिति में वो सुनाया गया, किसी को कोई पता है? Does anyone have any idea किस परिस्थिति में वो संवाद हुआ था? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में, मगर किस परिस्थिति में? कुरुक्षेत्र में प्रभु, जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा अपनों के साथ। Yes, Ashna again has put in the comment box when Arjuna was bewildered. Yes, perfect. जब अर्जुन जो पूरा साल, मतलब 1 साल हो गया था, वो लोग वेट कर रहे थे, युद्ध की तैयारी कर रहे थे, और हर दिन उसकी बाहें फड़क रही थी कि किस दिन आएगा दुश्मन मेरे सामने और उनको मार दूंगा, उनको वध कर दूंगा। और जब युद्ध का bugle was sung, when the bugle was sung for the war and both the parties were standing against one another, that time Arjuna suddenly developed some weaknesses. एक हिंदी में क्या कहें उसको, एक कमजोरी, हाँ राइट, एक कमजोरी आ गई थी उसके अंदर, मन के अंदर। और आचार्यगण कहते हैं ये कमजोरी भगवान की वजह से ही है, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है, और वो चाहते थे कि वो कमजोरी अगर नहीं आता तो शायद हम लोगों को ये संवाद या ये भगवद गीता नहीं मिलता। तो इट वाज लाइक अर्जुना वाज कंफ्यूज्ड, मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, और ये तो बहुत गलत बात है, मेरे गुरु हैं, मेरे ताऊजी हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, माय ब्रदर्स, माय कजन सिस्टर्स, माय रिलेटिव्स, एवरीवन आर देयर, सब लोगों का, और कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी इस युद्ध से, ये सब का पाप मुझे लगेगा, और मैं क्या फायदा है, मैं कैसे उसको भोगूंगा, हाउ विल आई एंजॉय दिस मटेरियल ऑपुलेंस व्हिच इज स्टेन्ड विद ब्लड, खून से जो सना हुआ वो खुशी रहेगा, उस खुशी को मैं कैसे भोगूंगा। तो ये सब प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे, और जब ये सवाल उठा, लोग कहते हैं ये तो अर्जुन के प्रश्न थे, एक्चुअली अर्जुन के प्रश्न नहीं, ये हमारे प्रश्न हैं, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह है। वी आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमारे जीवन में भी हर मिनट, हर क्षण नए परिस्थिति आती है या नया प्रॉब्लम्स आता है, और हमें पता नहीं कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इसके लिए भगवान ने भगवद गीता हमको दिया, सो दैट इट गिव्स अ मैनुअल फॉर आवर लाइफ। कहते हैं ना,
हर कोई चीज खरीदते हो, जब कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो, जब कोई गाड़ी खरीदते हो, तो साथ में एक किताब मिलती है किस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे ही इस मनुष्य जीवन को मिलने के बाद इस मनुष्य जीवन को कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में एक मैनुअल है, एक डायरेक्शन दिया गया है, और उसमें से आपको उस चीज का ज्ञान मिलता है। वेरस भागवतम जो है वो एक संवाद वो भी है, और वो संवाद क्या है? परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। और परीक्षित बहुत बड़ा महान राजा था, इतना बड़ा भक्त था कि मां के गर्भ में ही उसने भगवान का दर्शन कर लिया था। He could see God in his womb। इसके लिए उसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? वो बाहर आके, गर्भ से बाहर आके सब कुछ जो सब जगह यही ढूंढता था, परीक्षा करता था, क्या वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था? क्या वो व्यक्ति नहीं जिसने कुछ मैंने गर्भ में देखा था? He is always searching for that person। That is why वो परीक्षा करते करते उसका नाम ही परीक्षित हो गया। एंड वो गर्भ में कैसे देखा? जब वो माँ के गर्भ में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया था उसको मारने के लिए। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में उसके गर्भ में आकर उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया और उसकी जान बचाई। तो वही परीक्षित जब एक दिन जंगल में गया था और शिकार खेलने, और वापस आ रहा था, उसको बहुत भूख लगी थी और बहुत प्यास लगी थी। तो एक ऋषि के आश्रम में चला गया और वहां पे जाके देख रहा था कि ऋषि वो बैठा है, तपस्या कर रहा है, मगर उसे पूछ नहीं रहा है। इतना बड़ा राजा है, पृथ्वी का पूरा पृथ्वी का राजा था वो, पर उसको पूछा नहीं। उसको बहुत गुस्सा आया। बोलते हैं ना, जब इंद्रियां कुछ मांग रही हो और उसकी पूर्ति ना हो तो व्यक्ति को क्या होता है? क्रोध आता है। और गुस्से में वो बाहर आया और आश्रम के बाहर आया और देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा के उस ऋषि के गले पे डाल दिया। जैसे उसने डाला और तुरंत वहां से चला गया। घर में पहुंचने के बाद उसको शौक हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था, बहुत उनका he used to respect the brahmanas very much, and he used to respect, not only respect them, he used to pay his obeisances to them, and such a person behaving like that was quite a shocking for him. But कहीं ना कहीं it's all destiny, उसके पीछे भी कारण है। जैसे वो उसके पुत्र को पता चला कि मेरे पिताजी के ऊपर उसने एक मरा हुआ सांप रखा है, उसने वहीं पे हाथ में जल लेकर वहीं पे उसने संकल्प किया और उसको श्राप दिया कि आज से 7 दिन के भीतर तुझे तक्षक नाग डस के तू मर जाएगा। बोलेंगे प्रभु जी इसमें क्या, हमारे लिए क्या है? 7 दिन में वो मरने वाला, हमारा क्या फर्क पड़ता है? याद रखना, हम भी हफ्ते में किसी एक दिन मरेंगे और हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। We also have got only 7 days, and within the 7 days, one of the day you have to die. कोई सोमवार मरेगा तो कोई मंगलवार या बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार रविवार, कोई एक ना एक दिन मरेगा। तो हमारे पास भी परीक्षित की तरह 7 ही दिन है। और किसको पता है इस पल का ठिकाना नहीं, कल का किसने देखा है? ऐसे समय में, कलयुग में, इस पल का ठिकाना नहीं है। सो जो 7 दिन बचे थे तो उसने हमको एक मार्ग दिखाया कि जब व्यक्ति के पास वक्त होता है तब उसे क्या करना चाहिए। अगर हमारे पर ऐसी परिस्थिति गुजरती है तो हम क्या करते? 7 दिन के अंदर आपका अगर नोटिस मिल जाए कि आपको 7 दिन में मरना है, निखर, व्हाट वुड यू डू? You suppose you come to know you got only 7 days left and you're still a kid, college going kid. So what will you feel? What would you do? ऑनेस्टली तो अभी के हालात के मुताबिक तो वही है कि अपने फैमिली के साथ मतलब सबको गुड बाय कह लो, अच्छे से मिल लो, कुछ करना है तो कर लो, ऐसे आखिरी इच्छा समझ के पेरिस घुमाओ। That's मतलब what... अभी के अकॉर्डिंगली आई डोंट नो
what's in the future. और कोई है जो अपना मत देना चाहेगा? शिवानी माता जी, व्हाट वुड यू डू अगर आपके पास 7 दिन हो तो? शिवानी माता जी, yes, tell me, what would you do if you have 7 days left? क्या पता नहीं, और कुछ तो करोगे ना आप। That very thought will not allow us to do anything. I'll tell you a small joke. यहाँ पे एक छोटा सा एक जोक बता दो। निखर, you're in which year of your college? First year, second year, third year? First year. First year. Suppose, I mean, I don't know अभी आपका वहाँ पे नॉर्थ में क्या हाल है मुझे पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो कॉलेज में कैंटीन बढ़िया होता है। हम लोग कॉलेज कम, कैंटीन में ज्यादा हम लोग रहते थे when we used to be in college. तो suppose you're sitting in your college canteen, हाथ में बढ़िया क्रिस्पी समोसा है, मजा लेके क्रिस्पी समोसा देख रहे हो, might be your boyfriend is also there sitting in front of you, कुछ नैन मटक्का कर रहे हो, and having a nice Coca-Cola in your hand or any soft drink, and your friends are also there and you're all having a laughing time, enjoying, वाह क्या बढ़िया समोसा है, क्या बढ़िया कोल्ड ड्रिंक है, क्या बढ़िया दोस्त हैं, सब कुछ है। और इतने में अचानक में आपका कोई दोस्त दौड़ के आता है और कहता है, निखर अपने रिजल्ट लग गए हैं, नोटिस बोर्ड में अपने रिजल्ट लग गए, टर्म का एग्जाम का जो भी हो, एक एग्जाम का रिजल्ट लग गया। तब आपका क्या हालत होगा? कर्म याद आ जाएंगे ना, क्या क्या कर्म किए एग्जाम के टाइम पे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। वही अभी क्रिस्पी समोसा में स्वाद नहीं रहेगा, वही कोल्ड ड्रिंक में या सॉफ्ट ड्रिंक में मजा नहीं रहेगा, वही दोस्तों में अब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मन एक ही जगह पे रहेगा, लेट मी गो टू द नोटिस बोर्ड एंड सी व्हाट माय रिजल्ट इज। राइट और रॉन्ग? Am I right or wrong, Nikha? What would you do? Yes, you're right. है ना? That's the time when all our karmas we remember. I mean, all our karmas in the sense, all our studies में क्या क्या हम लोगों ने चीटिंग किया, क्या क्या ऑप्शंस में छोड़ा, पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो कितना परसेंटेज मिलेगा, all a big question mark. Similarly, when we are all having a nice happy go life और अचानक किसी के जीवन में एक मृत्यु का समाचार आता है, तो व्यक्ति पूरी तरह से हिल जाता है। बट यही तो गलती है। हम सबको पता है, जब आपने परीक्षा लिखी थी तब आपको पता तो था एक ना एक दिन तो उसका रिजल्ट आएगा ही। उसी तरह है, जब हमने सब जन्म लिया है तो सबको पता है एक ना एक दिन कहीं ना कहीं हम सबका मृत्यु होने वाला है। We are all going to die one day for sure, whether you want or you don't want. आप कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो रिजल्ट देखना ही नहीं है, मैंने तो बहुत गंदा पेपर लिखा है। आप इच्छा करो देखना है या नहीं देखना है, देखना तो पड़ेगा ही। रिजल्ट एक ना एक दिन तो बाहर रिलीज होने वाला ही है। उसी तरह है, एक ना एक दिन हम सबको उस मृत्यु भगवान यमराज के सामने खड़ा रहना है। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं समय के रूप में रोज आप लोग मर रहे हैं। हम सब एक एक मिनट एक एक क्षण हमारा कम होते जा रहा है हमारे जीवन के आयु से। अगर आप हमारे आयु 100 साल की है तो उसमें से रोज एक एक क्षण कम होते जा रहा है, रोज नहीं हर क्षण। इसके लिए भागवतम कहता है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यान अस्तम च यान असौ तस्य रते यत् क्षणो नेतः उत्तम श्लोके वार्तयः। भागवतम सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, हर मनुष्य का आयु हरण हो रहा है। कैसे हरण हो रहा है? उद्यान अस्तम च यान असौ, जैसे हर रोज सूरज उगता है और सूर्यास्त होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन से आयु एक एक दिन कम होती जा रही है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी अच्छी
हिल स्टेशन पे जाते हैं तो सनसेट पॉइंट देखने के लिए जाते हैं, बड़ा मजा आता है, अरे क्या बढ़िया है, सन डूब रहा है, वो तो हर रोज डूब रहा है, और एक दिन जब डूब रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा है, अरे हमारे जीवन से एक दिन चला गया, उल्टा हम लोग फोटो लेते बैठे हैं। अरे सनसेट पॉइंट में फोटो लेने का आनंद ही अलग है ना। ये नहीं पता चलता है कि जीवन का एक दिन डूब रहा है। सो इसके लिए कहते हैं कि आयुर्हर्ति वै पुंसान उद्यान अस्तम चयानसौ यत् क्षणे क्षणो रीतः उत्तम श्लोके वार्तायाः, सिवाय उस व्यक्ति के जो हर पल उत्तम श्लोक है, यानी कि भगवान का नाम गुणगान कर रहा है या भगवान की कथा कर रहा है। तो 7 दिन जब परीक्षित महाराज के पास बचे थे, जब उसकी आकाशवाणी हुई कि इसके पास 7 ही दिन है, तो उसने तुरंत जो आप करने वाले थे वो नहीं किया। उसने अपने परिजनों को मिलना, अपनी आखिरी इच्छाएं ख्वाहिशें पूरी करना बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया, अपने पुत्र को जयमेजय को राज्य सिंहासन पर बिठा के वो चले गंगा के तट पे। कहाँ पे ये जगह है? शुकताल, मेरठ के पास है। दिल्ली से मेरठ जाते हो तो उधर आता है शुकताल, हरिद्वार से बहुत नजदीक है जगह। तो वहां जाके बैठ गए और वहां सुखदेव गोस्वामी आए, क्योंकि वो गए थे भगवान की खोज में, और जैसे व्यक्ति भगवान की खोज में जाता है तो भगवान क्या भेजते हैं? एक आचार्य, एक गुरु भेज देता है। तो वहां स्वयं भगवान के रूप में सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने परीक्षित महाराज को पूछा, क्या भाई, क्या आप कुछ कथा सुनना चाहेंगे क्या? तो उन्होंने क्या बोला परीक्षित महाराज ने? उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी को मिले उन्होंने एक ही चीज बोला, भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पे कि मेरी आयु 7 दिन में खत्म होने वाली है। अगर ये नहीं होता ना तो शायद मैं मेरी आसक्ति न छोड़ता, घर परिवार धन दौलत राज्य के ऊपर जो मेरी आसक्ति है वो मैं इतने जल्दी छोड़ता नहीं। पर क्योंकि भगवान ने कृपा करके मुझ पे ये 7 दिन का 7 दिन का वक्त दिया है, has given 7 days for me, I have taken this bold step of giving away all my attachments to various things, which includes my kingdom, my wealth, my family, my members, everything. And after detaching, क्या करूं? After detaching, only you have to listen to the Hari Katha. And कहते हैं ना, जीवन भर आपने जो काम किया है ना, मृत्यु के समय भी वही काम करोगे। Whatever you have done throughout your life, at the time of death, अगर कोई व्यक्ति बोले हाँ प्रभु जी भक्ति तो करेंगे मगर वो तो बुढ़ापे में करनी होती है। जीवन भर आप अगर किसी न किसी चीज के भोग में अगर बैठे हो तो मृत्यु के वक्त क्या आपको सब भगवान और सब विरक्ति आ जाएगी क्या? You will also be doing the same activity that time also. That is what is Bhagavatam. And the biggest nutshell I've always told you all, Bhagavad Gita and Bhagavatam makes you or turns you from God fearing to God loving. We all are generally, what you see in people so called calling themselves spiritual are basically God fearing. हम पूजा इसके लिए करते हैं कहीं भगवान कोपित न हो जाए और कहीं हमारा काम ना बने। तो कहीं ना कहीं हमारे काम बनाने के चक्कर में हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ तो विधि से होती है, भक्ति विधि से नहीं, गुरु के आज्ञा से और आपके भगवान के प्रति प्रेम से भक्ति होती है। और भक्ति के 2 पुत्र थे, भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं। कौन से 2 पुत्र हैं? हाँ, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य कब आएगा? जब आप भक्ति करोगे। और अगर आपका भक्ति का क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी का है तो ज्ञान और वैराग्य का पुत्र नहीं होगा। ये 2 बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा। ज्ञान मतलब असली ज्ञान। मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, दैट इज नॉट नॉलेज। असली नॉलेज इज who am I, where have I come, and how am I supposed to achieve Lord. That is what is real knowledge. And ये दोनों की शास्त्र में आपको ये ज्ञान दिया जाएगा कि आपको भगवान को कैसे प्राप्त करना है। बाकी जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग लाइफ। रोज उठते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं और एक दिन मर जाते हैं, बूढ़े होके मर जाते हैं। सो व्हाट्स सो ग्रेट
अगर मनुष्य बनना है तो हमको धर्म अधिक विशेषो, वो इंसान बनाता है आपको, अदरवाइज नहीं, आप तो एक अच्छे बढ़िया क्वालिटी के जानवर हैं। तो याद रखना, भगवत गीता और भागवतम दो अलग किताबें हैं। भगवत गीता संवाद है, उसमें पूरी चीजें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अर्जुन को कृष्ण भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस, वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। whereas भागवतम इज स्टोरी ऑफ वेरियस डिवोटीज, कई सारे भक्तों की जीवन खाता है। जो इंस्ट्रक्शंस भगवान ने भगवत गीता में बोला है, उसी को भागवतम में आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं। इट इज सिंपल। आपने अगर लॉ पढ़ा हो तो देयर आर सम कोड्स, IPL कोड्स, ये which only talked about the law. If you murder, then you will be hanged. Or if it's not a cold-blooded murder, then if there are certain circumstances, then that murder, for that you will be given life sentence. ये तो हुआ law. But law journal होता है. What is that law journal? अगर आप किसी वकील के पास जाओगे तो वो केस लड़ते वक्त क्या एग्जाम्पल से लड़ता है, क्या बता के लड़ता है? उस केस में फलाने फलाने के बीच में और फलाने फलाने के बीच में जो केस हुआ, उसमें जज साहब आपने ये डिसीजन दिया था क्योंकि ये लॉ उसमें अप्लाई हुआ था, उस हिसाब से इस मेरे क्लाइंट पे भी यही लॉ अप्लाई होना चाहिए। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? लॉ इज डिफरेंट, एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज डिफरेंट।